کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. 40واں اور یہ سارے معاملات چلتے تھے اور بڑی شدت سے معاملات تھے. صحیح ہے. اور دیگیں وغیرہ چڑھنی, سارے مزاروں پہ خیر نہیں مگر گھر تک سارے معاملات. ٹھیک ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پروموٹ کریں گے, جہاں پہ آپ 4 دیگیں دیتے ہیں ہم 10 دیگیں دیں گے آپ کے ساتھ. مگر صرف ہمیں آپ اپنے جن سے آپ نے سنا ہے یا جن سے آپ چل رہے ہیں ان سے ہمیں آپ قرآن حدیث سے ثابت کر کے لا دیں. سننا شروع کیا, پھر میرا ایک ہی بیسکلی کویسچن سب سے تھا اپنے آفس میں اپنے کولیگس کے ساتھ. میں کہتا تھا آپ ایسا کریں, مجھے انجینئر محمد کی آپ کوئی بھی ایسی چیز آپ نکال کے ویڈیوز میرے سامنے رکھ دیں جو قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہے یا اس کے مخالف چلتی ہے, ہم ان کو سننا چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ 2-4 ویڈیوز دیکھی ہیں تو ہم آ گئے. آج اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس اٹینڈنگ بڑے بہترین جواب ہیں دفاع کرنے کے لیے. ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے اور میں آپ کی سعادت سے بھی کہنا چاہتا ہوں اس ٹائم, میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ ان کو سنیں اور اس کے بعد کوشش کریں کہ ان کی اگینسٹ کوئی غلطی نکال دیں مجھے, تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہو جاؤں گا. وقت قیامت تک, ٹائم قیامت تک, ٹائم قیامت تک. ٹھیک ہے. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبداللہ بلال. عبداللہ بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ گجرانوالہ سے ہے. ماشاءاللہ پہلوانوں کے شہر سے ہیں, آواز کم آ رہی ہے. جی آپ ٹھیک آئیے, آپ ٹھیک آئیے. جگہ ہی ایسی ہے نا, اونچی بولنے کو دل بھی نہیں نہ کرتا, نرم لہجہ ہی اچھا رہتا ہے. نہیں یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں آ کے ان کا نرم لہجہ ہی نہیں ہے. وہ انہی کا اچھا لگتا ہے اونچا لہجہ نا, ہم تو سننے آئے ہیں جی انہی کا, ان کا لہجہ ہی تو کھینچ لایا ہمیں یہاں پہ. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ. اچھا عبداللہ بھائی گجرانوالہ سے ویلکم آپ کو جی جہلم اکیڈمی میں. اکیلے آئے ہیں یا نہیں, میرے ساتھ میرے کزن آئے ہیں اور میرے 2 کزن ہیں اور ایک میرا آفس کا کلیگ ہے. صحیح ہوگا. ٹھیک ہے, 4 دوست ہیں جی, 2 کزن ہیں اور ایک دوست ہے, 4 لوگ ہم آئے. کب نکلے؟ ہم لوگ الحمدللہ فجر کی نماز کے تھوڑی دیر بعد نکل آئے تھے ہم لوگ, تقریباً 6 بجے کے قریب. ہاں 2-2.25 گھنٹے میں پہنچ. جی الحمدللہ. صحیح ہو گیا. ناشتہ کیا پھر؟ جی اکیڈمی کا لنگر کھایا؟ جی بالکل, ادھر ہی آ کے. آپ کیونکہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میری خواہش ہے ہر بندہ ایک دفعہ. جی الحمدللہ بالکل. چلو جی, سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جہلم اکیڈمی میں. آپ نے یہ جو سفر کیا یہ اللہ کے لیے کیا؟ جی بالکل. اچھا جی, اب یہ بتائیں کہ یہ جو سفر کیا یہ کیوں کیا؟ خیر خیریت تھی؟ سفر تو کافی لمبا ہے اور بتائیں نا, یہ تو سننے بٹھایا. کافی لمبا سفر ہے اور 2 گھنٹے کا سفر تو نہیں ہے, اس کے پیچھے کافی ایک لمبی ہسٹری ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑے معاملات ہیں. خالی مجھے لے کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں ان کو میں بڑا لائک کرتا تھا سننا. ماشاءاللہ. ہمارے گھر میں جو ہے وہ 40واں اور کسی دور میں 40واں اور یہ سارے معاملات چلتے تھے اور بڑی شدت سے معاملات تھے. صحیح ہے. اور دیگیں وغیرہ چڑھنی, سارے مزاروں پہ خیر نہیں مگر گھر تک سارے معاملات. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر سب سے بیسک جو رول تھا وہ ہمارے والد صاحب کا تھا. ٹھیک ہے. کہ والد صاحب اس چیز کو بڑا اس وقت پر موڈ رکھتے تھے اور انہیں کی سمجھتے تھے. ظاہری بات ہے جی, اس دور میں جو آپ کو جس لائن پہ چلایا جانا تھا اس نے, تب تو آپ کو پتہ ہے ریسرچ والا دور ہی نہیں تھا. جی ایسے ہی جو مسجد کے امام نے کہہ دیا آپ کے لیے وہی حرف آخرت ہوتا ہے اور اسی کے اوپر آپ اپنی زندگی گزار چھوڑتے ہیں. بالکل ایسے ہی. سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ کس طریقے سے ان کو اس رستے سے دوسرے رستے پہ لے کے آئے. یہ تو آپ کو جب اور اس کے بعد کی بات کریں, اس وقت بھی آپ کو سمجھ آ رہی؟ نہیں, اس وقت تو ہم الحمدللہ ان کے ساتھ دیگیں بھی بانٹتے تھے اور سارے معاملات بھی ڈال رہی ہوگی. بالکل. اس کی ریزن یہی تھی کہ ظاہری بات ہے کہ ہم نے اپنے جس جگہ پہ اپنے والد کو دیکھا تھا اور ہمارے لیے تو سب سے جو بیسک پرسن ہے وہی ہے. میرے ایک دوست ہیں, میرے کزن ہیں, میرے تایا جی کے بیٹے ہیں, میرے ساتھ آئے ہیں, شاید میرے بعد وہی آئے انٹرویو کے لیے. یہ اہل حدیثوں سے مسلک ان کا معاملہ تھا سارا. ٹھیک ہے. تو میرے سے 1 مہینہ چھوٹے ہیں, میرا بڑا پیار ہے ان کے ساتھ. انہوں نے کچھ چیزیں بتانی شروع کی کہ یار یہ چیزیں غلط ہیں, کرتے 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 معاملات انہوں نے ایک رستے پہ لگایا. پھر آگے سے ہم لوگ چلتے رہے. اس کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آئے, فیصل آباد سے اپنا مولانا ساق صاحب,
हाँ मौलाना इसाक साहब आए, उनको भी सुना। तो फिर फाइनली फिर बेहतरीन हाल यही मिला हमें अब्बा जी को चेंज करने का, कि हम कहते थे कि जी आपने चालीसवां करना है, आपने 14वां करना है, आपने जो भी करना है हम आपके साथ खड़े हैं, और हम इंशाल्लाह ताला प्रमोट करेंगे। जहाँ पे आप 4 दे के देते हैं हम 10 दे के देंगे आपके साथ, मगर सिर्फ हमें आप अपने जिनसे आपने सुना है या जिनसे आप चल रहे हैं इनसे हमें आप कुरान हदीस से साबित करके ला दें। बिल्कुल सही। अगर वो कर देते हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं वो कर सकते तो फिर नहीं है। बाबों की किताबों पे तो हमने आगे भी यकीन नहीं किया। तो फाइनली इंशाअल्लाह वो सारी बात है, इसके लॉजिकली जवाब तो किसी के पास नहीं थे। बिल्कुल ऐसे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि ये वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ और आज आपके सामने बैठे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी के अंदर ही हदायत दे दी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी रास्ते पे हम लोग चल गए हैं। ये अल्लाह का बड़ा सही बात है, ज़िंदगी में और जवानी में। जी, जवानी की इबादत का तो मज़े हाँ जी। उसके बाद फिर जब हमने इंजीनियर साहब को जब मैंने सुना है, बड़ी कैसे तारुफ हुआ इनका? तारुफ कब हुआ? इनका तारुफ आपको पता है कभी अच्छे तरीके से हो ही नहीं सकता। आप 100 लोगों से भी इंटरव्यू लेंगे वो यही बताएंगे कि इन्होंने ना सुने। जी जी जी। और न्यू जनरेशन जो सी है, आपको पता है इसको जिस चीज़ से रोका जाए तो ये उसके पीछे भागती है। ऐसे ही इनसे तारुफ भी ऐसे ही हुआ कि मेरे कज़न थे और वहाँ पे हम लोग बैठे हुए, तो बस ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इनके ना बड़े मामला ख़राब हैं, तो ना ही सुना करो, बेहतर है। खैर वक्त गुजरा, सुनना शुरू किया। फिर मेरा एक ही बेसिकली क्वेश्चन सबसे था अपने ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ। मैं कहता था आप ऐसा करें, मुझे इंजीनियर मोहम्मद की आप कोई भी ऐसी चीज़ आप निकाल के वीडियोस मेरे सामने रख दें जो कुरान और हदीस के अगेंस्ट है या उसके मुखालिफ चलती है, तो हम इनको सुनना छोड़ देंगे। हमारे लिए कोई ये रोल मॉडल तब तक ही है जब तक ये कुरान और हदीस से ये जी उसी की बात कर गलत बयानी नहीं होती है। तो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हर तरह से चेक किए, सारे मामला किए, पढ़ी लिखी फैमिली, शऊर है, सारा कुछ रिसर्च की, 100% 100 पाया। और मेन चीज़ जो मैं देखी है दूसरों से इनका जो हट गया है कि बड़ा क्लियर बेसिस पे बात करते हैं, घुमा फिरा के नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है, बिल्कुल लॉजिकली बात होती है, और बड़ी तफसीलन उसकी बड़ी गहराई में जाके उसको समझाते हैं। आज अगर हम बैठे हैं, गुजरांवाला से आए हैं, यहाँ पे आए तो इसलिए सिर्फ आए। ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये मेरा तो तकरीबन पिछले 7-8 साल से चल रहा है। इंजीनियर साहब के साथ अब तो ये आदत पड़ गई है, रात को कब नींद ना आए तो कान में एयरपैड लगा होता है, बयान सुनते रहते हैं। ये रास्ते में बात हो रही थी सुनते हुए सो जाते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी। उस रब का बड़ा। ये रफुल यदैन की तरफ फिर कब आए? नमाज का तरीका ठीक किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने आपको बताया ना, ये आपको पता है अहले हदीस उनके साथ ही ठीक हो, उन्हीं के साथ हमारा चल रहा था। ठीक है, और मामला वो वहाँ से ये मेरे अल्लाह ताला इनको अजर दे, मेरे कज़न को जो हमें इस लाइन पे लेकर आए, और आज माशाल्लाह वो मेरे साथ भी आए हुए हैं माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया था, आपको जैसे आपने खुद बताया कि लोग तो बातें करते हैं, लेकिन जब आपने सुनना शुरू कर दिया तो कोई घर में से, कजन्स में से, कोई दोस्तों में से जी कोई ऐसा वाकया हो लोगों के साथ, कोई वो ये जो इनके अगेंस्ट बातें करते हैं? मेरे ना ऑफिस के कलीग हैं, शायद वो भी इंटरव्यू सुने कभी, उन्होंने मुझसे एक दफ़ा ये कहा कि इनको तो कुरान मजीद नहीं पढ़ना आता। ठीक है, सही है। जो सुनी सुनाई मशहूर बातें आपको पता है इनके मुतालिक चला गई थी। मेरा एक ही सवाल था, मैंने कहा यार आप मुझे ऑथेंटिक चीज़ ला दो जो कुरान और हदीस के अगेंस्ट है। यहाँ वो कह रहे हैं कि यार ये बुखारी शरीफ में है, तो नहीं है वहाँ पे, अगर अपनी तरफ से बनाई गई है। बिल्कुल सही। यहाँ वो तर्जमा कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, या उनकी डेफिनेशन जो उनकी बात की गहराई है, अगर वो बात की गहराई में जाके वो मामला क्लियर नहीं होते, सफाई नहीं आती बात की, तो मैं आपके साथ हूँ। असल में फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह उनको फिर मैंने कहा हुआ, आज तकरीबन कोई 3 साल गुजर गए हैं, मैंने उनको कहा है, जिस तरह मिर्जा साहब कहते हैं ना, ता क़यामत तक टाइम है ਅਸੀਂ भी क़यामत तक टाइम दिता है कि ਤੁਹਾਡਾ टाइम भी क़यामत है कि तुसी जड़ा ना सानू जवाब दो, और सारी बात नहीं है, आना ही नहीं है जवाब। अच्छा, मैं तो हैरान होता हूँ, मुखालफीन तो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो हमारे ही स्टूडेंट्स होते हैं ना, बाद वक्त जब वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ना, ये उनके दिमाग में वसवसे आने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक बंदा कहता है इसको कुरान पाक नहीं पढ़ना आता, तो मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट पे तुफ है कि वो ये सोच रहा है। और एक बंदे ने 344
लेक्चर कुरान के रिकॉर्ड करा के तफसीर रिकॉर्ड करवाई हुई है पिछली वाली, अभी 196 के 95 के करीब अब हो चुके हैं, ठीक है। और यार अगर उनमें से किसी ने 15, 20, 30 गलतियां निकाल भी दी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि भी ज़्यादा तो सही है। हजरत बात पता है क्या है, मेरा जो अपना मानना है ना, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जिस दौर में मूसा होता है उस दौर में फ़िरौन भी होता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, जहाँ पर फरिश्ते हैं वहाँ पे शैतान भी हैं। जी ऐसे ही है। ठीक है, ये तो क्रॉस चलता रहेगा। आप ये समझें कि आप, मैं कहता हूँ आप इंजीनियर साहब को मतलब 0 to 0 भी कर देंगे ना तो निकालने वाले इख्तलाफात तब भी निकालेंगे। हाँ, ये बेसिकली आपकी अपनी सोच है, आपका अपना नज़रिया है। अगर आप लोगों की बातों पे चलेंगे जिस तरह हमारे बड़े भी चलते आए हैं तो फिर तो हाल यही रहेगा। ऐसे हमने भी अगर इंजीनियर साहब को माना है ना तो इनको हमने इसलिए नहीं माना कि हम इनके फ़ैन हो गए हैं, इसके पीछे जी, 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 रिसर्च जी, है। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे रियलिटी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तोल के नाप के फिर हम इस मुकाम पे आए हैं, आज इस जगह पे पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 वीडियोस देखी हैं तो हम आ गए। आज अगर हम किसी से बात करते हैं ना तो हमारे पास अटेंडिंग बड़े बेहतरीन जवाब हैं दफा करने के लिए, ठीक है। तो आपको मेरी तो एडवाइस भी यही है कि आप अगर किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं, आपका पहले काम बनता है आप उसको रिसर्च करें। तो अभी हम लोग इस जगह पे आ गए हैं कि अगर हमारे सामने कोई बंदा कहता है यार उनको ये नहीं आता फलाना, वो हमारे लिए बेमायनी है क्योंकि हमें पता है उस चीज़ का, ठीक है। तो बैंस के आगे बीन आप बजाते रहें तो बजाते रहें, सही उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही। अच्छा, अब आपकी जो अपनी फैमिली है उनके मामला सब क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है जी, बस नमाज है का मेरे तरीका? बड़े भाई हैं बीच में कुछ हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, वो इख्तलाफात रखते हैं और उसकी रीज़न सिर्फ यही है, मैं समझता हूँ कि उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है, बड़े भाई हैं मेरे साथ ही जॉब करते हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है और मैं आपकी सादत से भी कहना चाहता हूँ इस टाइम, मैं उनको ये कहूँगा कि आप उनको सुने और उसके बाद कोशिश करें कि उनकी अगेंस्ट कोई गलती निकाल दें मुझे, तो मैं इंशाल्लाह उनके साथ हो जाऊँगा। वक़्त क़यामत तक टाइम क्या बता टाइम क़यामत तक, ठीक है, सही तो टाइम क़यामत तक है। अगर नहीं निकालेंगे दुआ भी है उनके लिए, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और मामला आसानी और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है मुझे अल्लाह के घर में कि जी जी अल्लाह खैर, अल्लाह ताला खैर ज़रूर इस रास्ते पे। दुल्ला भाई फर्स्ट टाइम आए आज? जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, लास्ट टाइम आऊँ बस। सुन काफ़ी अरसे से रहे हैं लेकिन फर्स्ट टाइम आए। जी मेरी कज़न है मेरे साथ हैं, ये माशाल्लाह के कट्टर अहले हदीस हैं और ये इनसे आज से कुछ अर्सा पहले मेरी बात हुई, तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार, उन्होंने माशाल्लाह दीन का नॉलेज इतना है इनको, मेरे कज़न को, कि यही मुझे लेकर आए हैं अहले हदीस पे। मैंने आपको बताया ना मेरे साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह पास बैठे हुए मेरे बाद वही इंशाल्लाह ताला आएंगे, तो यही मुझे इस लाइन पे रहता। तो मैंने इनसे एक ज़रा सा जिक्र किया तो उन्होंने कहा नहीं यार अब्दुल्ला भैया आपको नहीं पता। तो ये मेरे है मुझसे 1 महीना छोटा है मगर मैं इनको टीचर्स की तरह डील करता हूँ, मुझे बड़ी चीज़ें इनकी तरफ से, मैं खामोश हो गया। इत्तफाकन आज से 3 दिन पहले मैं इनके घर इनकी इयादत के लिए गया हाल चाल पूछने के लिए, तो वहाँ पे बस डिस्कस हो गया दीन की बात। तो मैंने कहा यार इस तरह डरते डरते मैंने बात की। इन्होंने कहा अब्दुल्ला भाई आपको तो पता ही नहीं है, इंजीनियर साहब के साथ ज़्यादती पड़ी हुई है, वो अहले हदीसों का तो ये मामला था। जब मैंने वो पढ़ा है मैंने सुना है यार वो बंदा ही बड़ा ज़बरदस्त है ये वो। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा फिर चलें? इन्होंने कहा जी चलें जी। ये जुम्मे की गालबन बात है, जुम्मे को आया था मैं जी, जुम्मे की बात, और अल्हम्दुलिल्लाह इतवार को हम आपके पास है माशाल्लाह। चलो जी ये जी छोटी सी स्टोरी है। सही हो। चलो जी, आपने ये जो सफ़र किया ये अल्लाह ताला की मोहब्बत में किया, क्योंकि अल्लाह की वजह से हम इंजीनियर साहब से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को कबूल करे। फरमाए, जी, आमीन। आमीन। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह। अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी जी, इंशाल्लाह। इंजीनियर साहब आ जाएंगे, अभी आप बैठे। जज़ाकल्लाह खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।